ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਆਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਆ, ਮਸਤੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਿਰੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੂਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਈ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਰਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਆਖਿਆ, ਮਸਤੀ ਆਖੀ। ਮਸਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਆਵੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਸ ਹੈ, ਸੁਲਫਾ ਹੈ, ਗਾਂਜਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਫਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਾਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ तमाम ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਮ ਨਾਲੋਂ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
जिस कैदी नूं सब तो वड्डी सजा देनी होवे, कोई शैतानी ज्यादा करता होवे, तो उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते वास्ते कलिया ही रखा जाता है। उन्होंने कहने तैनू हुण विशेष सजा देनी है, तू कला है। 4 दिनों बाद ही माफी मंगन लगता भी मैनू कलिया नहीं रखो, दूजियां दे नाल रखो। ऐसा क्यों? कला रहन नाल मनुख नूं अपने गम का पता चलता है, अपने दुख का पता चलता है, अपनियां बेचैनियां का पता चलता है। ते जन्म कई पीढ़ियां तो ये बेचैनियां मनुख ने इकट्ठियां कीतियां ने, इस जन्म दियां नहीं, बहुत सारियां ने, बहुत सारियां। वो सारियां सामने आ जांदियां ने इकल्ले इकलपणे विच। तो अपने आप दे नाल बैठना बड़ी औखी गल हो जाती है। इकल्ले बैठने का मतलब है अपने आप नाल बैठना। तो अपने आप नाल बैठना बड़ी औखी गल है। दूजा तीजा चाहिए, कोई मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई संबंधी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, होर नहीं तो कुछ कम से कम टीवी सही, कोई नॉवल ही सही, कुछ ना कुछ चाहिए। मनुख कला नहीं बैठ सकता। कलियां दे वो सारियां बेचैनियां उजागर हो जांदियां। और जे दूजे तीजे दे होंदियां भी ये बेचैनियां मिटन ना, याद आवन, तो फिर नशा चाहिए, कोई सरूर चाहिए, कोई मस्ती चाहिए। भावें कितना ही धर्म ने निंदिया इस गल नूं कि नशा मनुख की बुद्धि नूं भी कम करता है, मनुख की उम्र नूं भी कम करता है, मनुख की चेतन शक्ति नूं भी कमजोर करता है, मनुख की शरीरक बल ते उम्र नूं भी घटाता है। लेकिन मनुख धर्म की इस गल नूं एक कंन तो सुन के दूसरे चों कढदा है। कारण अंदर बेचैन है, की करे? तो सरूर चाहिए, मस्ती चाहिए। बेहोशी तो मस्ती पैदा होती है, नशियां तो मस्ती पैदा होती है, ये बंदे नूं पता है। पर धर्म तो भी एक मस्ती पैदा होती है, धर्म तो भी सरूर पैदा होता है। धर्म भी एक नशा है, ये बंदे नूं पता नहीं। पर एक गल थोड़े समक्ष भेट करा, बाहर दे नशे बाजार बिकते ने, बंदा खरीद लैंदा है, नाम का नशा आप बनाना पैंदा, बस इन्नी गल आप बनाना पैंदा, बिकदी कोई नहीं। ये नाम की खुमारी बिकदी नहीं, नाम की मदरा बिकदी नहीं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भाई साहब भाई नंदलाल ने जो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनंद भगत ने ते हजूरी शायर ने, 52 कवियां विचों भाई नंदलाल का दर्जा बड़ा खास दर्जा से। आप दियां गालबन 7 किताबां ने, जिन्हां दे चों कुछ किताबां बड़ियां प्रचलित ने। तौसीफे सना, बंदगी नामा, दीवाने गोया, ये किताबां भाई जी दियां बड़ियां मशहूर ने। बंदगी नामा आपने सब तो पहले लिखी सी, ते जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं भेंट की कि आ पातशाह ने किताब लिखी है, आप वेखो जरा। सतगुरु ने उस किताब दियां सिर्फ 2 नज़मां ही पढ़ियां। कहने लगे, नंदलाल इस किताब का तू नां की रखे? पातशाह, बंदगी नामा नहीं, ये तो जिंदगी नामा है। जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने जिंदगी मिलेगी, जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने जीवन मिलेगा, जिहड़ा पढ़ेगा उसनों मस्ती मिलेगी। नंदलाल नूं इंज आशीर्वाद दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। 52 कवियां विचों सिरमौर कवि सन भाई साहब भाई नंदलाल। गोया आपदा तखल्लुस से उपनाम सरने। हुण ये अपनी एक नज़म दे दीवाने गोया दी गालबन दूजी नज़म दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं साकी कहंदे ने। साकी ते पर्शियन दे साकी कहंदे ने शराब पिलाण वाले। साकी शब्द वरतिया है नंदलाल ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वास्ते। उन्हां दी रचना मैं थोड़े सामने रखा। विदेश साखी मरायत जाम अजां रंगीनी दिला। ऐ साकी एक जाम पिला, सुनिया तेरे कोल भरे हुए जाम ने। सुनिया
तेरे कोल कोई नशा है, तेरे कोल कोई सरूर है, तेरे कोल कोई मस्ती है। ये विचार मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि साडे हिंदुस्तान विच एक गल प्रचलित है कि दुराचार करके मुसलमान तबाह हो गए, वहम ते तोहमात करके हिंदू तबाह हुए, शराब करके सिख तबाह हुए। आम प्रचलित है हिंदुस्तान विच गल कि दुराचार मुसलमानों की बुनियादी कमजोरी है, वहम तोहमात हिंदुओं की बुनियादी कमजोरी है। सियाणे बंदे कहते शराब सिखां की बुनियादी कमजोरी है हिंदुस्तान में, ऐसा कहना आम एक चर्चा है उत्थे। लेकिन बगौर कदी मुताला करिए, शराब हुण समुची दुनिया की कमजोरी बन गई, सारी दुनिया की। हर बंदे नूं नशा चाहिए। अरब दे विच भावें शराब हराम है, अरबी पींदे ने, बोधी पींदे ने, बुद्धिस्ट पींदे ने, हिंदू पींदे ने, मुस्लिम पींदे ने, ईसाई सारा जगत पींदा। नशा चाहिए, सरूर चाहिए। बंदे नूं इसे ही सरूर का पता है, बेहोशी, कुछ बेहोश हो जाइए, कुछ भुल जाइए, कुछ गल्लां भुला देइए, कुछ गल्लां बार बार परेशान करदियां ने, बेचैन करदियां ने। कदी बगौर मुताला करना, जिस गल नूं हिरदा पकड़ लवे उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है, ते जिस गल नूं हिरदा पकड़े ना उन्होंने याद करना भी बड़ी औखी गल है। सिमरन का मतलब है याद करना। सिमरन के आखिरी अर्थ ने याद करना, और कुछ नहीं। सिमरन लफ्ज है संस्कृत का, ते इहदा अर्थ है याद करना। किनू याद करना? रब नूं याद करना। ते याद बंदा किसनूं करदा? जिन्हों भुल गया उन्होंने याद करना। कदी असी ऐसा उपदेश देंगे हैं किसी को भी तू पुत्र का सिमरन कर, मित्र का सिमरन कर, पत्नी का सिमरन कर, पति का सिमरन कर, दोस्तों का सिमरन कर, मकान का सिमरन कर, घर का सिमरन कर। ये तो आपे ही चल रहा, ये तो भुलिया ही नहीं सिमरन की करे। पर रोज कहा जाता है गुरु का सिमरन कर, रब का सिमरन कर, क्यों भुल जाता है? हिरदा पकड़ता ही नहीं, तो जिन्हों हिरदा पकड़े ना वो भुलेगा। घर विच बहुत सारिया चीज़ां थोड़े पईयां होंदियां ने, किहड़ी चीज़ नज़रां तो ओझल हो जाती है, किहड़ी चीज़ भुल जाती है, जिसनों हिरदे ने पकड़िया नहीं। घर दे विच है, भुल गई है, नहीं चेता। ते जिस चीज़ नूं हिरदे ने पकड़ लिया उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है, वो नहीं भुलेगी। हिरदे ने गुरु नूं नहीं पकड़िया, हिरदे ने रब नूं नहीं पकड़िया, रोज भुल जाता है, रोज भुल जाता है। रोज सुनना पैंदा है सिमरन कर, सिमरन कर। यकीन जानो जी याद ही आ गया है, जो सिमरन आ ही गया है उसका, तो फिर इस उपदेश की लोड़ ही नहीं कोई। फिर तो बंदा अठे पैरों की याद हर वक्त उसकी याद है, वो भुलता है। जिन्हों हिरदा पकड़े ना भुल जाता है, बार बार भुलता है। तो जिन्हों हिरदा पकड़ लवे उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है। तो जन्मां जन्मांतरां दे अंदर कुछ गम पे ने, बेचैनियां पईयां ने, परेशानियां पईयां ने, जो असीं भुगतियां ने, वो भुलाइए तो भुलदियां नहीं, यतन करिए तो भुलदियां नहीं। दिल दिमाग दे उत्ते बोझ की तरह पईयां होंदियां। फिर की करे? मनुख ने ढंग लभ लिया, शराब पी लो, गांजा पी लो, चरस पी लो, सुल्फा पी लो, भंग पी लो, अफीम खा लो, बड़े तरीके कढ लैन बंदे। भुल जाओ, वक्ती तौर पर भुल जाओ। कम से कम जिन्ने चिर तक नशा रहेगा बेचैनियां तो नहीं रहनगियां, परेशानियां तो नहीं रहनगियां। जैसे जैसे संसार विच बेचैनी वधदी जा रही है, वैसे वैसे नशे भी वधदे जा रहे हैं। ते मनोविज्ञानी दो तरह के नशे ने। धर्म भी एक नशा है, होश का नशा, तो एक बेहोशी का नशा है। तो जे होश का नशा ना मिलिया तो बेहोशी के नशे के सारिया ने लीन होना ही है, मजबूरी है। इन्हां दोवां दे विच एक रस्ता मनुख अपनाएगा, या तो बेचैनियां नूं खत्म करे या बेचैनियां नूं भुलावे। तो जिहड़ा भुलाना है ये तरीका बड़ा आसान है। थोड़ी जिहियां पी लो तो भुल जाओ, थोड़ी जिहियां अफीम खा लो तो भुल जाओ। और समुची दुनिया दे किसी न किसी रूप दे ये नशे चल रहे हैं। आम गृहस्थियां दे ते चलते हैं, साधुओं दे भी चलते हैं।
हिंदुस्तान का साधु समाज जितनी भंग पींदा, चरस पींदा, सुल्फा पींदा, इतना आम गृहस्थी भी नहीं पींदा। कारण साधु नूं एकांत बड़ी मिलती है, कल्ला बैठना। तो कल्लेपणे विच जन्मां जन्मांतरां दीयां बेचैनियां सामने आउंदियां। की करे? फिर भंग दा आसरा लैंदा, सुल्फे दा आसरा लैंदा, गांजे दा आसरा लैंदा। और आम गृहस्थी बंदा जो सोचां दे सागर विच लीन हुंदा है, दिमाग ते बोझ पैंदा है, फिर इसनूं पीना पैंदा, इसका आसरा लेना पैंदा। कहते ने इस्त्री जगत जिहड़ा है ये भावुक ज्यादा है, ये अंदर शरदा ज्यादा है, ये मन विच टिकाव ज्यादा है, इनू इतनी नशियां की लोड़ नहीं। पर जैसे जैसे संसार विच इस्त्री जगत भी बेचैन हो रहा है, वैसे वैसे इस जगत विच भी नशे वध रहे हैं। और जे धर्म का सरूर ना मिलिया तो करीबन इस दुनिया विच हर बंदा नशई होगा, हर बंदा। मुश्किल है तुसी ऐसा कोई मनुख लभो जिहड़ा कोई परम होश दे होवे। तो मैं अर्ज कर रहा सी, नाम भी एक नशा है, कीर्तन एक नशा है, बाणी एक नशा है, नितनेम एक नशा है, अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करना एक नशा है, ये भी एक सरूर है, ये भी एक मस्ती है। इस वास्ते नंद लाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों अरजोई करते हैं और गुरुदेव नूं कहंदे ने साकी। साकी कहंदे ने पिलाण वाले नूं, जिहड़ा प्याले विच पा के देवे वो साकी। ते साकी कह रहे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं, विदे साकी मरायक जाम अजा रंगीनिए दिलहा बचश में पाक भी आसान कुनम ई जुमला मुश्किला। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे साकी, सुने तेरे कोल कोई जाम है भरे आया, मैनू भी दे, दो जहाना दियां मुश्किलां मेरियां आसान हो जान, इस लोक दी चिंता ते परलोक दी चिंता तो मैं बच जावां, इस जहान दे गम ते उस जहान दे गम ये दूर हो जावन। सुने ऐसा तेरे कोल कोई जाम है मैनू दे, विदेशा की मरायक जाम अजा रंगीनी दिलहा बचश में पाक भी आसान कुनम ई जुमला मुश्किला। मेरिया सारिया मुश्किलां आसान होवन, ऐ मेरे साखी मैनू पिला। हिंदुस्तान दे ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती एक बहुत उगे फकीर होए ने। उन्हां दी दरगाह बनी हुई है अजमेर विच, उन्होंने मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं। उहदा एक बड़ा कीमती शेर है, क्योंकि ये आए सन ईरान तो हिंदुस्तान विच, मादरी जबान इन्हां दी पर्शियन सी। वो कहते हैं विदेशा की मये बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही नेस्त। एक विचार चल पई है, इसनूं मैं इस वक्त चलाना चाहना। मयूद्दीन चिश्ती कहते हैं, ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे गुरु, मैनू ऐसी शराब दे कि मैं जन्नत नूं ठोकर मार दें। विदेशा की मये बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही नेस्त। मेरे अंदर जन्नत की भी तलब ना रहे, मेरे अंदर जन्नत की भी इच्छा ना रहे, मैं जन्नत नूं भी ठोकर मार दियां। पता क्यों? आप सुन के हैरान होवोगे। किसी मौलवी आलम फाजल कोलों पूछो कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए तो फिर की होगा? कहते जन्नत मिलेगी। तो जन्नत दे की है? पता की कहते हैं? जन्नत दे हूरां ने ते शराब दे चश्मे। ऐ कुछ उत्थे बोतलों दे शराब नहीं मिलती, शराब दियां नदियां, शराब दे चश्मे हैं। एक कल्पना की गई है। दरअसल मजबूरी सी कि वो जो रब्बी सरूर सी उन्होंने तशबीह किस नाल देनी? शराब नाल देनी सी, मजबूरी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भावें मुसलमान ने, शायद आपको पता हो, इन्हों का दादा कश्मीरी ब्राह्मण से, हिंदू तो मुसलमान बने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बहुत उगा चोटी का विद्वान पुरुष होया और खुद कहता मैं हाँ तो हिंदू का ही पुत्र, ब्राह्मण का,
लेकिन मैं इस्लाम दीयां गहराइयां नूं समझदा। और इस तरीके नाल उसने साफ कबूलिया, ब्राह्मण ज़्यादा अस्त व राज हाय शमस तबरेजी। बई हाँ तो मैं ब्राह्मण का पुत्र, पर मैं शमस तबरेजी के राज नूं भी जानदा। मैं फकीरां, इस्लामी फकीरां दियां रमज़ां नूं भी समझदा। ये कहता है बहिश्तो हूरो गिलमा इज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ऐ मौलवी तू कहना है नमाज पढ़, रोज़ा रख ते शराब मिलेगी, पूरा मिलणगियां जन्नत विच। ये ते तू ईमान नूं कमज़ोर करने है, ये ते तू धर्म नूं कमज़ोर करने है। ते जिन्हों इत्थे ही पीण नूं मिलदी है, उन्होंने फिर नमाज पढ़न की लोड़ ही की, बथेरी है शराब इत्थे। फिर क्यों नमाज पढ़े, क्यों रोज़ा रखे, क्यों मस्जिद विच जावे, क्यों तरह तरह दी कठिनाइयां सहारे। लेकिन आप सुन के हैरान होवोगे, जब धर्म की चर्चा करनी पई इकबाल तो धर्म की तस्वीर उसने भी शराब नाल दे दी है। यूरोप की सियाहत करके, समुचे यूरोप के देशों का भ्रमण करके इकबाल जब हिंदुस्तान विच वापस गया, उदों अजे देश की वंड नहीं हुई सी। तो इस दे कोल पुछया गया कि हिंदुस्तानी जिहड़ा धर्म है ते यूरोप का जिहड़ा मजहब है, इहदे विच की अंतर है, थानू की कुछ दिखाई देता? उत्थों की सभ्यता, इत्थों की सभ्यता, इत्थों का धर्म, उत्थों का धर्म, कुछ निर्णय करो, कुछ तुलना करो। एक करदा है, कहता है बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरब के मैं खाने। कहता शराब खाने में हिंदुस्तान के भी देखे ने, यूरोप के भी देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरब के मैं खाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है साहबा। कहता यूरोप के जिहड़े मैं मैखाने वेखे ने, शराब खाने वेखे ने, शराब किसी काम की नहीं, बिल्कुल गंदी, कोई सरूर नहीं, कोई नशा नहीं, पर साकी बहुत अच्छा है, जिहड़ा पिलाण वाला है ना वो बहुत अच्छा है। उहदे प्याले बड़े साफ सुथरे, उहदे पेश करने का ढंग बड़ा, अंदाज बहुत वधिया है, और वो ऐसी हलेमी नाल पेश करता है कि पीण नूं जी करता है, भावें शराब गंदी है। कहता हिंदुस्तान की शराब पाक पवित्र है, बड़ी चंगी है, बड़ी वधिया है, उहदे सरूर भी है, उहदे मस्ती भी है, पर साकी बड़ा गंदा है, उहदे प्याले बड़े गंदे ने, उहदे पेश करने का ढंग बड़ा गंदा है, इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता, भावें शराब बहुत चंगी। दरअसल गल वो जी कह गया है बड़ी कीमती। वो कहता यूरोप के जिहड़ा धर्म है कोई ज्ञान विज्ञान की कोई गल नहीं है। क्षमा करनी, अज ज्ञान ते विज्ञान की कसौटी ते तुसी बाइबल नूं परखो ना, अद्धी बाइबल गलत हो जाती, अद्धी। उहदे च लिखिया जमीन चपटी है, उहदे च इह लिखिया जमीन आ जिहड़ी है साकन है, रुकी हुई है। अज विज्ञान ने गलत साबित कर दिता बई ते गुम रही है, ये चपटी नहीं ते गोल है। उहदे च लिखिया 6 दिन खुदा जिहड़ा है दुनिया बनांदा रहा, 7वें दिन थक गया, वो फिर रेस्ट करन लग पिया। 6 दिन बनांदा रहा, 7वें दिन थक गया। 7वां दिन किहड़ा सी? इतवार, रविवार, सूरज का दिन। इसदा मतलब सूरज मौजूद सी, ते जे सूरज मौजूद सी ते संसार मौजूद सी, की खाक बना रहा सी, की बना रहा सी? इस तरह दी बच्चों वाली गल्लां पूरी नहीं उतरती गल, वो सच्चाई है। इकबाल कहता यूरोप की शराब किसी कम की नहीं, उत्थों का धर्म किसी कम का नहीं, पर कहता उत्थों का जिहड़ा पादरी है ना, जिहड़ा साकी है, जो मिशनरी है, उहदे पेश करने का ढंग इतना वधिया है, उहदे प्याले इतने वधिया ने, पीण नूं जी करदा, मनण नूं जी करदा। कहता हिंदुस्तान का ज्ञान बड़ा महान है, बड़ी गल है। हिंदुस्तान विच वेद ने, शास्त्र ने, उपनिषद ने, गीता है, सिमरतियां ने, पुराण ने, कोई थोड़े ग्रंथ ने, ते ग्रंथां दे सिरमौर ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी। कहंदा बड़ा ज्ञान, बड़ा ज्ञान, बड़ी गल। यहां साकी नहीं मिलता
हिंदुस्तान ਦੇ ਸਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो साकी तो बिना मैखाने उजड़े पे, साकी तो बिना शराब खाने उजड़े पे, कोई पींदा ही नहीं। ते जिस ढंग दे नाल पिलाउण दी कोशिश कीती जांदी है, इस ढंग नाल सियाणा बंदा पीण नूं राजी नहीं। लड़ाई ने, झगड़े ने, वितकरे ने। हुण ये एकता दा केंद्र है ते इत्थे ही अनेकता दी मैं गल छेड़ बैठा। ये शांति दा केंद्र है ते मैं इत्थे डुबदा दी गल छेड़ बैठा। जिथे एक दी गल करनी होवे उत्थे द्वैत दी गल करिए, जिथे निर्वैर दी गल करनी होवे उत्थे वितकरियां नूं ते वैर नूं जन्म दिता जाए। यहां साकी नहीं मिलता, साकी कोई नहीं। शराब ते बहुत वधिया, बहुत वधिया, साकी कोई नहीं। पीण नूं जी नहीं करता। हिंदुस्तान के गुरुद्वारियां च झगड़े, मंदिरां च झगड़े, कलेश। एक सियाणा बंदा जिन्होंने कुछ मस्ती चाहिए है, कुछ सरूर चाहिए है, और जब देखदा साकी किसी काम दे ने, असी लोग साकियां च आ जाने। गुस्ताखी माफ, गुणी ने, ज्ञानी ने, रागी ने, प्रचारक ने, प्रबंधक ने, ये सारे साकियां च आ जाते। ते हुण ज्ञानी आप अज्ञानी हो गए, ज्ञानी आप लोभी हो गए, ते प्रचारक खुद प्रचार की दुनिया तो परे हो गए, ते प्रबंधक के अंदर खुद कोई सिक्की का शौक ना हो। कौन इसके हथों तो शराब पीवेगा? कौन पिएगा? किहनूं लोड़ है? यहां साकी नहीं मिलता, वहां बेशौक है साहबा। इत्थे साकी कोई नहीं। शराब ते है बड़ी वधिया, बहुत कीमती, बड़ा सरूर है, बड़ा नशा है। इकबाल कहता है साकी नहीं है। ब्राह्मण किसी कम का नहीं, मौलवी किसी कम का नहीं। उन्हें साफ कह दिता है, अगे गल खोल के कह दी है। सच कह तू ऐ ब्राह्मण, उन्हां दिनां च जदों इसने नज़म आखी सी, ओदी निगाह विच साकी ब्राह्मण ते मौलवी सन। उन्हें दोवां ते चोट की थी। सच कह तू ऐ ब्राह्मण, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कनों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर वाइस का आवाज छोड़ा। भैया ब्राह्मण में देखे कृष्ण ते राम की मूर्ति नूं अगे रख के तो इतने वितकरे खड़े कर देते ने। ये मलेच्छ है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है। तो इतने वितकरे खड़े कर देते ने, बंदे का बंदे नाल मिलना ही औखा हो गया, मनुख का मनुख नाल मिलना ही औखा हो गया। और ऐ मौलवी तू भी घट नहीं, तू उस हर बंदे नूं काफिर कही जाना है जिहड़ा इस्लाम के झंडे तले नहीं आया। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का आवाज छोड़ा, छोड़े तेरे पसाने। इकबाल कहता है ब्राह्मण तेनों मैं त्यागया, ऐ मौलवी तेनों भी मैं छड्डिया, तू किसी काम दा नहीं। शराब बहुत वधिया है, साकी किसी काम दे थोड़े हाथ बैठे ने, थोड़े पेश करने का ढंग बड़ा भैड़ा है, थोड़े प्याले बड़े गंदे ने, इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता, नहीं पीते। तो मैं अर्ज कर रहा सी धर्म नूं, मजहब नूं, धर्म ग्रंथां दी विचार नूं इकबाल भी शराब नाल तस्वीर दिंदा है। क्यों? धर्म एक सरूर है, एक नशा है, पर यह नशा बेहोशी का नशा नहीं है, होश का नशा है। एक बेहोशी का नशा है, एक होश का नशा। जब बंदा पूर्ण होश दे च होवे, की पहचान है पूर्ण होश दे च? अजे असी पूर्ण होश दे च नहीं है, इस चक्कर च ना पैना कि असी पूर्ण होश दे च। किसी वक्त मैं गुरबाणी दी हाँ कुछ पंक्तियां लैके इस गल नूं खोलांगा। असी सुते हैं, जागत सोया जन्म गवाया। साहिबां दी बाणी कहंदी असी जागदे होए भी सुते हैं, कोई जागदे होए नहीं। साडी शरीरक जिहड़ी सतह है ना, वो अद्धी सुत्ती पई है, जबान सुत्ती पई है, अखां सुत्तियां पईयां ने, कंन सुत्ते पए ने। तुसीं आपको जागदे हैं? नहीं, अद्धे सुत्ते पे ने, अद्धे जागे।
ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੀ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਗੀਤੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੇਖੇ ਹੋਰੀ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਬੀਰ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਖੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਮਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੋ, ਖੁਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਰ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਰ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧਨ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन से झगरत पाप। ये शब्द क्यों लड़ता है? सारा दिन लड़ता सी, सारा दिन बिखाद पाई रखता सी। गुरु रामदास जी महाराज तो कुछ सौगात ले नहीं सकिया, ना ये दिती जा सकी। दूजे पासे असीं देखते हैं कि प्रहलाद है 5 वरियां दा, उहदी बड़ी इच्छा सी कि जिहड़ी मस्ती मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਸਵੈਮ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੂਰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।
तो नैन रहे रंग लाई। नाम जपदियां जपदियां मनुख पूर्ण रूप ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਗੇੜਵੇਂ ਖੂਹ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਵਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੇੜਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਭੱਲੀ ਬਾਣ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਕੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਤਨਾ बोलना है ज्ञान ही है, जितना बोलना है नाम ही है, और जितना कहना है वो कोई सरूर है, वो कुछ मस्ती है। संक्षेप में हुण मैं अर्ज करा, इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े शब्द ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर ने। कबीर का एक छोटा जिहा शब्द मैं थोड़े सामने रखा। कबीर नाम नूं शराब कहते हैं, नाम नूं नशा कहते हैं, धर्म नूं नशा कहते हैं। पर यह नशा होश का नशा, जब बंदा पूर्ण रूप विच होश विच आवेगा खुमारी चढ़ जाएगी, और जब बंदा बेहोश होवेगा कोई शराब या कोई होर नशा लैके तां भी खुमारी चढ़ेगी। दोवां हालतां विच एक गल बनदी है कि बेहोशी दी शराब विच बेचैनियां नाल वक्ती तौर पर संबंध टुटता है, बेचैनियां नूं बंदा भुलदा है। पर जब होश की शराब मिलती है बेचैनियां खत्म हो जाती, बेचैनियां मिट जाती, दुखों तो छुटकारा हो जाता है, कलेश तो बंदा बच जाता है। भगत कबीर नूं इस तरह की मस्ती विच देख के एक जोगी ने सुभावक पुछ लिया, कबीर जापदा तू नशा कीता है? कबीर कहन हाँ कीता है। और योगियां दे शराब आम पींदे ने, चरस पींदे ने, गांजा पींदे ने, सुल्फा पींदे ने, बड़े भयंकर नशे जोगी लोग करते। वो जोगी पूछता है भाई कबीर तू नशे च जापदा है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है तेरे कोल, दस ते सही तू किन्नी क पीती है? कबीर कहंदे ने किसे वक्त पीती सी, बड़ी मुद्दत हो गई है, नशा अजे तक लिया नहीं, उतरिया ही नहीं, और उतरेगा भी नहीं। जोगी कहते कि नशे च पिया बोलना है, बई कभी पीती सी, बड़ी मुद्दत हुई है, किते गल ही गल है। कबीर कहते हाँ मैं ऐसी शराब पीती है जिहदा नशा लैंदा नहीं। आ जिहड़ी आम शराब है ना, या अफीम, थोड़े जिहा छिट्टे पानी दे मारो नशे रह जाते हैं। अफीम चीज जिहड़ा बंदा ना अफीम खाण वाला, वो पानी के नेड़े नहीं जाता, थोड़े जिहा पानी के छिट्टे मारो ठंडे नशा लै जाता है। पर नाम का नशा तो ऐसा है उबलती देग विच भी उतरता नहीं, नशा बनिया रहता, सरूर बनिया रहता, वो ठंडे पानी नाल लै जाता है, वो उबलते पानी च भी नहीं बनता। एक सरूर है, एक मस्ती है, एक खेल है। तो जोगी स्वभावक पुछदा है कबीर मुद्दत हुई है पीती सी? हाँ मुद्दत हुई है। नशा लैंदा ही नहीं? नहीं, वधदा जा रहा है, लैंदा ही नहीं। अच्छा फिर ये तो सानू भी दस, ये शराब कित्थों मिलती है? कबीर कहना मिलती कितों भी नहीं, आप बनानी पैंदी है। तो जोगी कहता अच्छा मैनू भी बनाने का ढंग दस ताकि मैं भी पीया। तो इस शराब के बनाने का ढंग गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर ने।
सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच गुरु नानक देव जी के शब्द ने रामकली राग के अंदर। रामकली राग के अंदर ही गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द ने और 8-10 शब्द इसे संबंध के भगत कबीर के जोगियां प्रति। एक शब्द मैं थोड़े सामने रखा। भगत कबीर कहना, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, बहु भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औधु मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या, त्रिभुवन भया उजारा। औधु मेरा मन मतवारा, ऐ अदूत महात्मा, मैं जिस दिन दी पीती है मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया। उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या, त्रिभुवन भया उजारा। ऐ योगी, जिहड़ी शराब तू पीना है, तू अपना नाम भी भुल जाना है, पर जिहड़ी शराब मैं पीती है, त्रिभुवन भया उजारा, 3 लोकां दा प्रकाश हो गया, बड़ा चानना हो गया, बड़ा ज्ञान मिल गया, बड़ी सूझ मिली गई। पर यह शराब तुसीं बनाई किस तरह? कबीर बनाने का ढंग दसदे ने। गुड़ कर ज्ञान, शराब मिठे तो ही बनाई जाती है, मिठे नूं कौड़ा करना होंदा, होर कुछ नहीं। कहते मिठे की जे अत कर दईए ना, अत तो मिठा कौड़ा हो जाता है, ते गुड़तन की अत कर दईए तो गुड़तन मिठी भी हो जाती है, अत पे जाके। और अक्सर जो थोड़ी जिहा भी शराब पींदा है, समझ लो बहुत सारा मिठा तो उसके अंदर जाता है, बहुत सारा मिठा, थोड़ा मिठा नहीं जाएगा। हुण कॉफी कुछ मिठा हो तो थोड़ी जिहा शराब बनती है, जे इतना मिठा उस बंदे के अंदर जाएगा तो शरीर रोगी नहीं होएगा तो होर की है, दुनिया भर दी बीमारियां नहीं सहेड़ेगा तो होर की है, पर वक्ती तौर पर उसने बेचैनी तो बचना इस वास्ते करना है। दरअसल शराब की है मिठे नूं कौड़ा करना, मिठे गुड़ नूं कौड़ा करना, मिठी शक्कर नूं कौड़ा करना, मिठे संतरियां नूं कौड़ा करना, मिठे अंगूरां नूं कौड़ा करना। कई दफा मैनूं ख्याल आंदा है, जिन्हां बंदियां ने मिठे अंगूरां नूं मिठा नहीं रहन दिता, मिठे गुड़ नूं मिठा नहीं रहन दिता, उन्होंने अपनी जिंदगी च कित्थे मिठास रहन दित्ती होगी? जिंदगी भी कुड़तन नाल भर छड्डी होगी, जिंदगी भी कौड़ी कर छड्डी, क्योंकि मिठे जो कौड़े कर छड्डे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, प्राचीन समय ते हुण भी भारत विच शराब जिहड़ी आम विकदी, जिहनूं देसी कहंदे ने, वो गुड़ ते महुए तो बनदी है। महुआ एक फुल होंदा है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार ते यूपी के थोड़े जिहा जिलियां च यह बहुत सारा पाया जाता है। ये दरख्त अंब के दरख्त की तरह होता है, उतना ही वड्डा होता है, ते मार्च अप्रैल विच उहनूं चिट्टे चिट्टे फुल लगते हैं चंबेली की तरह। उन्हां फुल्लां विच बड़ी मिठास होंदी है। गुड़ दे नाल मिला के महुए ते गुड़ दे चों शराब कड्ढी जाती है। भगत कबीर उसे दा ही उदाहरण सामने रखते हैं। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, भौ भाटी तन धारा। हुण भट्ठी ते चाहिदी है ना, जिहदे च गुड़ पाना है, जिहदे च महुआ पाना है। भय दी भट्ठी बनाइए, परमात्मा दा भय, अकाल पुरख दा भय, ये मैं बनाइए भट्ठी। हुण बंदा बंदे तो डरदा है, बंदा कानून तो भी डरदा है, बंदा रब तो डरदा है, बंदा गुरु तो डरदा है? कतई नहीं। मैं समुची दुनिया घूम फिर के देखा, जो अपने ढंग नाल अध्ययन किया, हो सकता गलत किया होवे, बंदा कानून तो भी डरदा है, बंदा बंदे तो भी डरदा है, बंदा गुरु तो नहीं डरदा, बंदा परमात्मा तो नहीं डरदा। और जिस दिन परमात्मा तो डरे, उसे दिन ही भगत बन जाता है। और परमात्मा निर्मल है, परमात्मा का भय भी निर्मल है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम आदोर। निर्मल भय मिले है, परमात्मा निर्मल है, उहदा भय भी निर्मल है। ते जिस दिन बंदा उसका निर्मल भय अपने अंदर धारण कर लेंदा है, चारों पासे अकाल पुरख दिखाई देता है, फिर उसके अंदर कोई भय रह भी नहीं जाता, वो निर्भव हो जाता है। निर्भव जपे सगल भव मिटे। तो खैर भगत कबीर कहते भय की मैं भट्ठी बनाई। इस भय रूपी भट्ठी विच ज्ञान का गुड़ पाया, ध्यान का महुआ पाया। ध्यान किसदा जुड़ेगा? जिसके अंदर गुरु का भय है, जिसके अंदर गुरु का अदब है, जिसके अंदर गुरु की शरत है, जिसके अंदर गुरु का भरोसा है, उसका ध्यान जुड़ेगा। तो जिसका ध्यान जुड़ेगा, ज्ञान उन्होंने ही मिलना है। ये सब कुछ इकट्ठा जुड़े हुआ है।
जिथे भय है उत्थे ध्यान है, जिथे ध्यान है ज्ञान उत्थे ही है। बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं होता। बाणी च ध्यान जोड़ो, वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करते हाँ, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ो, इस ध्यान ने ज्ञान को जन्म देना है। तो गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, भव भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औधु मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाखिया, त्रिभुवन भया उजारा। कबीर कहते ने नली में इस भट्ठी नूं केड़ी लाई है, नली लाई है भगती, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ शराब निकल निकल के आ रही है और मेरा मन पी पी के मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई। खिमा करने खुमारी ना आती ना तो भगतां ने नाम कदों का छड़ देना सी। बई एक दिन जपजी पढ़ी, रोज रोज हम पढ़न की की लोड़ है, एक दिन सुखमनी पढ़ लई, रोज रोज पढ़न की की लोड़ है, नहीं खुमारी है, इस वास्ते भगत पढ़ देना। खुमारी है इस वास्ते भगत जपते हैं। और खुमारी ऐसी जो परम होश की खुमारी, जिहदे नाल दुख कलेश सारे मिटिया ने, परम आनंद है, परम रस है। हुण इस भय रूपी भट्ठी दे थल्ले अग केड़ी बाली है, उस अग का भी जिक्र करते हैं भगत कबीर। दोयपुर जोर रसाई भाठी, पियो महारस धारी, काम क्रोध दोए पिए जलेता, छूट गई संसारी। बालन केड़ा डाया, क्योंकि भट्ठी के थले अग ना बालो तो शराब से बनती कोई। अग केड़ी बाली है, कबीर कहना मैं थले बालिया काम नूं ते क्रोध, काम क्रोध दोए पिए जलेता, जलेता कहना बालन ईंधन, ये मैं जलेता है, मैं बालन कीता है, काम नूं साड़िया, क्रोध नूं साड़िया। ते ज्यों ज्यों क्रोध सड़दा गया, ज्यों ज्यों काम सड़दा गया, भय रूपी भट्ठी विचों, ज्ञान दे गुड़ विचों, ध्यान दे मोगे विचों शराब निकलती रही, शराब निकलती रही। उन्होंने पी पी के मैं मतवाला हो गया, मैं मदमस्त हो गया। ते हुण भगत कबीर तो पूछिए, ऐ शराब बनाने की जाच तुसी किस तों सीखी? वो भी ढंग दसदे ने, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुरु ते सुध पाए, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाए। सतगुरु तो मत लई गए, सतगुरु ने मैनू सूझ समझ दी है, इंज शराब बनाई भी है। ते कबीर कहने जिस दिन भी मैं पीती है, दास कबीर तास मद माता, मद कहने शराब, जिस दिन भी मैं ये शराब पीती है, नशा ऐसा चढ़िया है लथा ही नहीं करी। मैं सरूर बेच रहना, मैं मस्ती बेच रहना, मैं आनंद बेच रहना। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को वेख के बाबर को भुलेखा लग गया कि ये साधु आम हिंदुस्तानी साधुओं की तरह भंग पींदा होवे। जेल में भंग पेश की सी बाबर ने। साहिब कहने लगे नहीं, तेनू भुलेखा है, इतने नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। पातशाह दी अखां नूं वेख के उन्होंने भुलेखा पै गया कोई पींदे ने, भंग पींदे ने। ते मैं लवस फिर दोहरा देना, एक शराबी बिठा दो जिन्हें रज के पीती होवे, ते एक जिसने रज के नाम जपे होए ते कोलों कोई सरूर होवे, दोनों बिठा दो, पहचान करनी औखी हो जाएगी। ये शराबी केड़ा और ये नाम खुमारी वाला केड़ा, लेकिन बाद में किरदार तो पता जरूर चलेगा, कर्मा तो जरूर पता चलेगा। हाँ ये निरा ही शराबी है और ये भगत है, लेकिन खुमारी तो भुलेखा लग सकता है, सरूर तो जिहड़ा है भुलेखा लग सकता है। तो सतगुरु की बाणी का फैसला, धर्म एक सरूर है, धर्म एक मस्ती है, धर्म एक खेड़ है, धर्म एक नशा है, धर्म एक खुमारी है। ऐसी खुमारी जिहड़ी होश तो पैदा होती है। जैसे जैसे बंदा नाम जपता है होश बढ़ता है, कि जो बंदा परम होश विच जाता सरूर तारी हो जाता है, नशा तारी हो जाता है। एक अगम्मी दुनिया दी पड़दे उसके उत्ते खुल जाते हैं, एक अगम्मी प्रकाश उसके अंदर पैदा हो जाता है और सारिया चिंतावां ते कलेश तो उसका अंत हो जाता है। इसे वास्ते नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कह रहे हैं, तुसी ते साथी हो, तुसी ते नाम दी शराब वंडण वाले, तुसी ते ज्ञान दा सरूर वंडण वाले हो, ते मैं भी इसे सरूर दा तलबदार हाँ। ऐ साथी मैनू भी पिला और पींदियां सार
मैं जन्नत नूं ठोकर मार दिया। विदेशा की मरा यक जाम अजा, रंगीनी ए दिलहा बचश में पाक भी आसा, पुनम ही जुमला मुश्किला। इतने वचन इस वक्त प्रवान करने विचार दी। आखिर तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च दिलों अरदास, पातशाह सब नूं ज्ञान दा सरूर बख्श, सब नूं नाम दा सरूर बख्श, सारियां नूं कीर्तन दा सरूर बख्श, सारियां नूं नितनेम दा सरूर बख्श, सारियां नूं नाम दा सरूर बख्श, ताकि शराब दे सरूर तो छेड़ा छुटे और तरह तरह के नशियां तो जिंदगी बचे। और मैं फिर अर्ज कर दिया, जे ना तुसी नाम दे सरूर दे नेड़े आए तो फिर शराब को मजबूरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदे के अंदर ते बेचैनियां है, बंदे के अंदर ते दुख है, बंदे के अंदर ते संताप है, बंदे के अंदर ते कलेश है। या तो उसनों भुलावे या तो उसनों दूर करे। शराब नाल भुलाए जाते हैं, नाम नाल दूर किए जाते हैं। बेहोशी दे बेचैनियां नूं बंदा भुल जाता है, होश ते दूर हो जांदियां ने। नाम जपदियां जपदियां परम होश मिलता है। ऐसा होश सारे कलेश मिट गए, सारे संताप मिट गए। मेरे पातशाह सारियां नूं अगम्मी सरूर बख्शण ते सारियां दे संताप दूर करन। भुल चुक लई खिमा दी याचना गज बज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।